सदियों की रुत बदली मगर यह दस्तूर ना झुका। सदियों की रुत बदली मगर यह दस्तूर ना झुका। ये वही जमीन है, ये वही जमीन है मित्रों, जहां हक और फर्ज का सिलसिला शुरू हुआ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब and greetings to all respected judges, distinguished guests and all my dear audience. This Dastoor, this sacred covenant is not merely a document written with ink on paper. It's the soul of a civilization that transformed its scars into stars, their disparity into destiny. 75 years ago, our founding fathers wrote, "We, the people of India." They didn't know our future, but what they did, they composed a symphony for 1.4 billion voices of today, my friends, 1.4 billion voices. But please allow me to introduce you to some history. Year 1947, a broken nation, 350 million dreams, and a single question. What is the question? Can a divided people unite? The answer, a constitution. A constitution that didn't just grant us our rights, but redefined our humanity inside. My friends, our constitution created the very institutions that we are living upon. This is one of its greatest examples. Plus, Article 17 abolished untouchability. Article 19 gave us dignity. Article 21 gave wings to truth, my friends. In this very house, Dr. Ambedkar's words are echoing through my ears, which continuously state to me, constitutional morality is the oxygen of democracy. And breathe we did, deeply, unapologetically and fiercely. My friends, don't get me wrong, our journey wasn't easy. Our journey had storms, partitions, epidemics, pandemics, wars, and whatnot, my friends, whatnot. But what stood with us was our constitution. Every disaster this nation ever faced, every peril that we have ever faced, the only support we had of our nation was our constitution. Our constitution led to us many reforms in all throughout of our country's history. In 1975, when our democracy gasped, it created a human will in our people that make them roar back. And as we reach the year 2025, and as we reach the realization of our dream of a truly developed, Viksit Bharat, our constitution is the sole blueprint for a $30 trillion economy, my friends, $30 trillion economy. And as the great poet Rashtrakavi Ramdhari Singh Dinkar said, सदियों की पड़ी ठंडी राख आज सुख बुगा उठी है, ए मिट्टी तू आज सोने का ताज क्यों पहन निठलाती है. My friends, 75 years ago our constitution asked us, कौन हो तुम? Today 1.4 billion voices proudly answer, my friends, हम भारत हैं, भारत का गर्व हैं, भारत के संविधान के संरक्षक हैं और हम ही अपने अधिकारों के गौरवान्वित अभिव्यक्ति के परिपक्व अधिवक्त मनुष्य हैं. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और जय हिंद, जय संविधान का नारा लगाना चाहूंगा. वंदे मातरम, वंदे. मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग से पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना. इस सभा में आए सभी को मेरा कोटि कोटि नमन. मेरे हाथ में जो किताब है, इसके हजारों पन्नों पे हजारों बिखरे हुए मोतियों को पिरो के एक नया भारत बनाने का जो सफर चला, उसका हर एक शब्द इस किताब में है, जिसका नाम है संविधान भारत का. इस संविधान ने हम सबको भरोसा दिलाया कि हमसे जो पहले गलतियां हुई हैं, उन सब से सबक लेंगे. इसने हमें बताया कि पहले जो जाति के नाम पे, मजहब की बुनियाद पे हमें बांटा गया, उसे ठीक करेंगे. और एक वादा दिया गया कि इसे हम भारत के अंतिम पायदान पे खड़े इंसान तक पहुंचाएंगे, उसे भी सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देंगे.
इसकी खूबसूरती इतनी है कि जिस इंसान को स्कूल में पैर रखने नहीं दिया गया, स्कूल का पानी पीने नहीं दिया गया, वो इंसान इस देश का संविधान रच के चला गया। आज मैं आप सबके सामने ये साड़ी पहने हिजाब के साथ खड़ी। ये हिजाब मेरी पहचान है, मेरी संस्कृति का हिस्सा है। ये मेरे संविधान की ताकत है जिसने मुझे हक दिया कि मैं अपनी पहचान सबके सामने बिना डरू अपना सकूं। ये मेरे संविधान की ताकत है कि आज मेरे पास आवाज है जिसके वजह से हम सब यहाँ पर आके कुछ बोल पा रहे हैं। लेकिन अगर हम सब आज एक पल के लिए ईमानदार हो जाए, इस संविधान से मिले कर्तव्यों से हम कितना जुड़े हैं? क्या हमारा कर्तव्य सिर्फ झंडे को सलामी देने तक है? हमारा कर्तव्य तब कहाँ मर जाता है जब इस देश में नवजात बच्चियों को नमक में लपेट के गटर में फेंक दिया जाता है। हम गंगा यमुना की पूजा करते हैं, पर्वत पहाड़ की पूजा करते हैं, लेकिन हम ही उसमें जहर फेंक रहे हैं। गरीब आदमी अस्पताल की चौखट पे दम तोड़ देता है और हम फिल्मी विवादों के पीछे पड़े हुए हैं। सुनीता विलियम्स चांद से खला से सही सलामत घर वापस आ जाती है और हम लड़कियां आज भी अपने बगल वाली गली में सुरक्षित नहीं हैं। हमें यहाँ समझना होगा कि अब हमारी बारी आई है। अब हम युवाओं की बारी आई है इस देश को संवारने का, इस नदियों को आजाद करने का, हर बच्चे को आसमान दिखाने का। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस देश में, इस धरती पे अब कोई निर्भया नहीं होनी चाहिए। अगर संविधान, ये संविधान अगर हमारा है तो इसकी जिम्मेदारी भी हमें उठानी होगी और फिर हम गर्व से कहेंगे जय भारत, जय संविधान। वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। यही हमारे राष्ट्र की कामना हो। मैं कृति कुमारी यहाँ उपस्थित सभी माननीय एवं आदरणीय को सादर चरण स्पर्श करती हूँ। समानता, न्याय जैसे संवैधानिक मूल्य सर्वोपरि हो और इन मूल्यों को सशक्त करने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए 11 संकल्पों पर मैं रोशनी डालना चाहती हूँ। पहला, सरकार का कर्तव्य हो निष्ठापूर्ण रूप से देश और जनता की सेवा करना, तो नागरिक का कर्तव्य हो अनुच्छेद 51 क में दिए मौलिक कर्तव्यों को पूरा करे। धर्म, पर्यावरण, अन्य जीव के प्रति सद्भावना रखे। दूसरा, बात हो खेल में मेडल लाने की या साहित्य में पुरस्कार, विकास हर क्षेत्र में हो, चाहे पृथ्वी से चंद्रमा का उछाल हो या उछाल हो भारत के अर्थव्यवस्था में, विकास का लाभ सबको मिले जिससे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा दूर हो सके। तीसरा, हम शपथ ले भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की। भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही विकसित भारत हो सकता है। चौथा, भारत और भारतीयता के प्रति समर्पण, प्राचीन ज्ञान, परंपरा, भारतीय आध्यात्मिकता, नियम कानून का पालन करके ही हम आगे बढ़ सकेंगे। पांचवा, औपनिवेशिक मानसिकता से परे मौलिक चिंतन और बौद्धिक स्तर का प्रयोग आवश्यक है और गर्व हो हमें हमारी समृद्ध विरासत पर। छठा, राजनीति का मूल्य हो प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। सातवां, जिस काल खंड और समय में हम हैं, स्वार्थ से परे संविधान का सम्मान करना आवश्यक है। आठवां, आरक्षण उनको मिले जो उसके हकदार हैं, जिससे समानता बनी रहे। नौवां, लड़की है घर से दूर कहाँ जाएगी, अरे लड़की है पृथ्वी से अंतरिक्ष तक जा रही है। महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण जैसे पूरे देश का कार्यभार संभाल सकती है। नारी शक्ति का विकास अनिवार्य है।
10वां, जिस प्रकार हमारे शरीर के विकास के लिए हर अंग स्वस्थ हो, उसी प्रकार देश के विकास के लिए हर राज्य का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास महत्वपूर्ण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद इस दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। 11वां, धर्म जाति से रंग रूप से ऊपर उठकर हम भारत अखंड हो, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत। गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, संकल्प को पूरा करें और अगर बनाए हम जो अभी वर्तमान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We, the people of India, stand today as sovereign, socialist, secular, democratic republic, with justice as our guiding light and liberty's warm embrace. Equality shining ever so bright and fraternity's gentle grace. Not just words, but the anthem of humanity finding its rightful place. A very good evening to Honorable Speaker, distinguished members and venerable dignitaries. I am Vartika, hailing from the land of Patna, where ancient wisdom meets contemporary aspirations. And today, let's talk about the most powerful weapon in the world, not a sword, not a gun, but something far mightier, our Constitution. And the 11 transformative sankalps of Samvidhan Divas that will pave the way for a stronger, more independent, more united India. संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये देश के हर नागरिक का संकल्प है। A pledge to secularism isn't about mere tolerance, it's about celebration of diversity. अनेकता में एकता और एकता में अनेकता is the very essence of our identity. When someone asks about equality, we won't hand them a rule book, we'll show them results. When it comes to women's safety, it begins at home in the way we raise our daughters and sons. Beyond just installing CCTV cameras, we are developing AI-powered analytics that will predict potential threats and trigger automated alerts to prevent crimes. Nari Shakti se Rashtra Kranti. What if we could live in a world where every decision made for us was as transparent as the mobile phone in our pocket? And when it comes to social justice, we are not just talking about bridging gaps, we are laying down the bridges for a brighter future. Constitutional awareness is not just about reading articles, it's about creating interactive platforms, compelling documentaries, thought-provoking podcasts, and a movement that inspires every individual. But this isn't just Sarkar ka kaam, it's our shared duty. The other day, I saw a tea seller giving a free cup to a tired old man. When I asked why, he smiled and said, Madam, इंसानियत की मिठास से बड़ी कोई चाय नहीं. And it made me wonder, isn't that the spirit of our Constitution? Humanity above all. Remember what Bapu said? Be the change that you wish to see in the world, and now it's time to transform these constitutional values into a vibrant heartbeat that pulses through every action. These 11 transformative sankalps are not the promises to be forgotten by 2nd of January. It's our collective vow to one another and to future generations. संविधान का सम्मान केवल पढ़ने में नहीं, इसे जीवन में अपनाने में है. For विकसित भारत, we need सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास and सबका प्रयास, because when 1.4 billion people team together, even the impossible goes down. संविधान के मूल्यों से जगमग होगा हर दिन. टूटेंगी सारी बेड़ियां, मिटेंगी सारी तकलीफ. एक नए भारत की कहानी हम मिलकर लिखेंगे आज, जहां हर नागरिक बनाएगा अपने भविष्य का ताज. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार. संविधान की शपथ लिए बढ़ते रहे बेखौफ हम, हक और कर्तव्य संग चमके हर एक सौभाग्य रथ. भारत की respected dignitaries, esteemed judges, and my fellow change makers of this great nation. 75 years ago, when the world saw India with uncertainty, we rose like a phoenix, carrying the beacon of democracy, unity, and constitutional supremacy. We were not just drafting a legal document. We were scripting the future of billion dreams. And today, those dreams stand tall, unstoppable, and unquestionable. Our Constitution is not just a book. It is the breath of our nation. It gave us rights,
the right to speak, to raise a voice, to dream and what not. But Indians, अधिकार वही सार्थक है जब कर्तव्य भी निभाए जाए. We claim the right to speech, but do we always use a voice for truth? We demand the right to equality, but do we always say that, yeah, this is not right and this is fair? Our constitution not just empower us, it expects us to rise above selfishness and work towards the unity of nations. Let me take you towards our journey. We started as a fragile democracy, and today we are the world's largest. Once we struggled even for the basic necessities of life, and today we are the 5th largest economy. From the abolition of untouchability to the right to education, from Green Revolution to Chandrayaan, we have proved that Indian Constitution is not just a set of laws. It is the force of transformation. Our Constitution is not just a book. It is the dream. It is to be celebrated. It is to be embraced and lived and carried forward in our actions. अधिकार मिले तो कर्तव्य निभाना, यही संविधान की सच्ची शान. हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी बनेगा भारत महान. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय. धन्यवाद. उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति. यहाँ उपस्थित सभी गणमान्यों का कुमारी कौशिकी का आदर प्रणाम. जब भारत आजाद हो रहा था तो इसकी एकता और लोकतांत्रिक शक्ति पर संदेह करते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था, नो वन कैन मेक अ नेशन आउट ऑफ अ कॉन्टिनेंट ऑफ मेनी नेशंस. आश्चर्य और गर्व की बात तो यह है कि आज इन्हीं पश्चिमी देशों का मानना है, इंडिया इज द डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी. ओनली इंडिया हैव अ सस्टेनेबल, कंसिस्टेंट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. जी हाँ, आज 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों वाला विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान 75 वर्षों की उस महायात्रा पर है जिसने एक नवजात गणराज्य को विश्व की महाशक्ति बना दिया. यदि हम बात करें 1950 की, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब भारत के कोने कोने में निष्पक्षता, असमानता और पिछड़ापन मौजूद था. जब भारत के संविधान ने एक बात कहा, हर नागरिक समान है, हर नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है, हर नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पक्षधर है. लेकिन अधिकारों से क्या यदि हम कर्तव्यों का बोध नहीं करते, और कहा भी गया है कर्तव्य पथा सदा सुखदाई. हम शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन हमने खुद कितने लोगों को साक्षर किया? हम कहते हैं हमें समानता चाहिए, लेकिन क्या हमने अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का मान रखा? क्या हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक रूप में उपयोग किया? एक देश कर्तव्यों के निर्वहन से बनता है, सिर्फ अधिकारों के उपभोग से नहीं. और यदि हम प्रगति की बात करें तो हमने देखा है 1950 के उस जर्जर, छीन और पिछड़े हुए एक राष्ट्र को सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए. हमने देखा है भारत को विश्व की महाशक्ति बनते हुए. हमने चंद्रयान भेजा तो संविधान ने वैज्ञानिक सोच का अधिकार दिया. हमने पर्यावरण की बात की तो संविधान ने जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण का बात की. हमने LGBTQ कम्युनिटीज के अधिकारों की बात की तो संविधान ने उन्हें समानता का पक्षधर बना दिया. यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का ही परिणाम है, जिन्होंने भारत के स्वर्णिम भविष्य की रचना के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के साथ संविधान में लचीलेपन का गुण डाला. यदि भारत का प्रत्येक क्षेत्र केरल के कोल्लम जिले की तरह संवैधानिक रूप से साक्षर हो जाए, यदि हम राजनीतिक ध्रुवीकरण को समाप्त कर देश की एकता और अखंडता की बात करें, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता. और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देश का सर्वोच्च ज्ञान संविधान है. अपने मन से एक प्रश्न पूछो, हु आर वी? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी द मेकर ऑफ विकसित भारत. जय हिंद, जय. जहां सबका सम्मान है, विकास वही है जहां सबका सम्मान है. हर हाथ में हुनर है, हर दिल में हिंदुस्तान है. माननीय मंत्री महोदय,
माननीय विधायकगण, परम आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे युवा साथियों, मुझे 3 मिनट का समय दिया गया है, जैसा कि सबको दिया गया है। ये तीन नंबर हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत निर्णायक है। हमारा लोकतंत्र, हमारा डेमोक्रेसी, उसका 3 निर्णायक अंग है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। हमारा जो संविधान है वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल पे काम करता है: समानता, स्वतंत्रता, न्याय। हमारे देश का जो तिरंगा है वो भी 3 रंगों का है। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे 3 मिनट का समय बोलने के लिए अवसर मिला है। महोदय, हमारा भारत का संविधान सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं है। मैं अपने क्लास 9th की एनसीईआरटी की किताब में मैंने पढ़ा था कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। इट इज नॉट अ सेट ऑफ रूल्स। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है नियम कानून के, ये 142 करोड़ लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों का प्रतीक है। महोदय, हमारा भारत देश, जिसमें लगभग हम 22 आधिकारिक भाषाएं हम बोलते हैं, 1200 से ज्यादा बोलियां बोलते हैं, लगभग हजारों जातियां हैं, सैकड़ों जनजातियां हैं, विश्व के अनेक धर्म हमारे यहां रहते हैं। महोदय, हम विविधताओं से भरा हुआ देश है। जब हम आजाद हो रहे थे, क्या कहा गया था हमारे बारे में? तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कहा था कि यह देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, इसका लोकतंत्र नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह विविधताओं से भरा देश है। महोदय, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी विविधता है वो हमारी ताकत है, हमारी एकता, हमारा पहचान है। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हम संविधान की यात्रा की बात कर रहे हैं महोदय। 1950 का भारत, कैसा भारत? हमें अमेरिका PL 480 स्कीम के तहत सड़ा गला हुआ गेहूं देता था। न सिर्फ देता था बल्कि वैश्विक मंचों पर इसका गुणगान करते रहता था। हम एक सुई बनाने का भी उद्योग नहीं रखते थे। आज हम वैश्विक शक्ति हैं। आज न सिर्फ हम उत्पाद कर रहे हैं बल्कि विश्व में निर्यात कर रहे हैं। आज हम इंडस्ट्रियल नेशन है। हमारा युवा नवाचार कर रहा है। लेकिन हमारे सामने उपलब्धियां हैं तो कुछ सवाल भी है महोदय। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बड़ी बात नहीं है। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, लेकिन हमारी विडंबना है कि हमारे देश में ही सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। ये हमारी विडंबना है महोदय। हम विकसित अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 5 देशों में हैं, लेकिन हमारे लिए यह समस्या है, हमारे लिए यह सवाल है कि हम विश्व के 50 विश्वविद्यालयों में भी हम नहीं हैं, हम कहीं नहीं हैं। आप सर्च करके देख लीजिए, हम विश्व के 50 विश्वविद्यालयों में भी नहीं हैं। हम जीडीपी की बात करते हैं, क्या जीडीपी की हम बात करते हैं महोदय? जीडीपी तो ब्राजील का भी है, बढ़िया, वो भी आगे है, लेकिन उसकी 1/3 आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। हमें जीडीपी नहीं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करनी होगी। हमें आय विषमता कम करना होगा। हमारे देश में जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो संसाधन पे कब्जा किए हुए हैं और यह देश के करोड़ों लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमें कार्य करना होगा। हम युवा शक्ति हैं, हम कार्य कर सकते हैं। और उसी उम्मीद के साथ दिनकर की 4 पंक्तियों के साथ अपना शब्द और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रियता कौन हुआ, नवनीत प्रेरणा कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय नौजवान। परोपकार्य फलन्ति वृक्षः, परोपकार्य वहन्त नद्यः, परोपकार्य दुहन्त गवः, परोपकार्य मिदं शरीरम्। According to Bharti Hari, trees bear fruits for others' sake, rivers flow for others' sake, cows are milked for others' sake, and shariram, that is the human body, is also for others' sake. And that is what a true leader firmly believes in. Greetings everyone, respected dignitaries and all my dear friends. I am Anisha Bharti from Patna, Bihar, and today I will be having my say on the topic 75 years of India's constitution, a journey of rights, duties and progress. When I closely look at this topic, I see 2 aspects, our constitution and its journey. Let us talk about them individually. World's largest democracy, India adopted its constitution in the year 1949, which was not just a legal framework, but a vision for making India a just, equal and progressive society.
Now, talking about its journey, it has provided us with our fundamental rights, which empower us with our integrity and freedom. But with rights come responsibilities, which means our fundamental duties, which remind us that as citizens we must uphold the integrity, unity and sovereignty of India. For over 75 years, India's constitution has been the backbone of India's progress. India's globalization, digitalization and space exploration have been the testament for India's constitutional strength. But here's the question which I'm sure most of us would have been thinking of, that this journey must have started from somewhere. So to answer this, let me take you all to the year 1946, when our Constituent Assembly was formed and was given a task to draft the constitution for independent India. So after 11 sessions for 165 days, India was finally ready to enforce the constitution on 26 January 1950. Now, talking about its present, India's constitution still remains the supreme legal authority, which is considered as federal in nature but unitary in spirit. Being a living document, it has been amended for 106 times. But dear friends, there's always a darker side of the moon, which means that the constitution, which is considered as the world's largest written document, still has some loopholes. The reservation policy was implemented for the upliftment of the marginalized communities, but today its implementation sparks debates. Our constitution empowers us with freedom of speech, but today the sedentary laws are often misused to suppress distress. But despite these loopholes, our constitution still remains an adaptable and dynamic document. With constitutional amendments and political consensus, we can overcome such shortcomings, and it is our responsibility as youth to uphold the constitutional principles for the generations to come. So through this platform, I call upon all of us to let us get united and ask ourselves how to strengthen this democracy. Well, the answer lies in awareness, participation and commitment. Which reminds me of a few lines by Dinkar ji. क्यों सुनो सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं, कठिन प्रकोष्ठ भीषण रश्मि का प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं. With this, I would like to end my words. Thank you. जय हिंद. जय. राम के संघर्ष का हम सार लिखने जा रहे हैं. हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं. दशकों से लोकतंत्र के अस्मिता की रक्षा करने वाले विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में उपस्थित आदरणीय विद्वद्गण, नीर क्षीर विवेक के निर्णायक मंडल और मेरे सामने आकार लेते नवीन भारत के युवा साथियों, मैं ऋषिकेश पूर्णोदय संविधान निर्माण के 75 वर्ष अधिकार, कर्तव्य एवं प्रगति की यात्रा विषय पर विचारक व्यक्ति हेतु उपस्थित हूं. महोदय, हमारा संविधान इसलिए महान नहीं कि यह दुनिया का लिखित सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए भी नहीं कि यह मानव रचित सबसे अमर कृति है, अपितु इसलिए यह उनकी भी रक्षा करता है जो इस पे विश्वास नहीं करता. इन 75 वर्षों की यात्रा में जहां हमने एक तरफ अनेक शून्य से सफर तक की यात्रा को तय किया, वहीं दूसरी तरफ जहां हमने अपनी परंपराओं को जीवित रखा, वहीं दूसरी तरफ हम आधुनिकता के क्षेत्र में भी आगे बढ़े. इस यात्रा में हमने देखा कि जहां एक तरफ विश्व के स्टेडियम से हमारे भारतीय तिरंगे को मिलती सलामी है, वहीं दूसरी तरफ अब किसानों को समृद्धि का फल सिर्फ अनाज नहीं अपितु व्यापक सारगर्भित फल भी मिलता है. जहां एक तरफ हमारे देश के नौजवानों को उन चीजों पर सोचने की आज आवश्यकता नहीं होती जिन चीजों के बारे में पहले सोचा करते थे, वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा में हमने यूपीआई का वैश्विक इस्तेमाल भी देखा. लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पिछले 75 वर्षों की परिणति से प्राप्त इस यात्रा को समझ करके और जान करके एक ऐसी दशा और दिशा भी सोचने का प्रयास करें कि आने वाले 25 सालों में हमारे देश का दशा और दिशा क्या हो. और इसके लिए महोदय मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस चीज का एकमात्र लक्ष्य केवल एक हो सकता है, वो है कि हम अधिकारों से अधिक वरीयता अपने कर्तव्यों को दें. बर्लिन ओलंपिक के दौरान भारत की विपन्नता का हवाला देकर हिटलर ने आमंत्रित किया था मेजर ध्यानचंद को अपने राष्ट्र से खेलने के लिए, लेकिन कर्तव्य की पराकाष्ठा पर केंद्रित उनका यह उत्तर न सिर्फ हमारी 75 वर्षों की यात्रा का मूल है, अपितु आने वाले 25 वर्षों का दिशा निर्देश भी है. उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने हमको क्या दिया यह महत्वपूर्ण नहीं, राष्ट्र को हमने क्या दिया यह महत्वपूर्ण है. और मैं आशा करता हूं कि जिस दिन इस देश का शिक्षक छुट्टियों से इतर देश के कर्णधारों को पढ़ाने में लग जाएगा, जिस दिन इस देश के युवा मोबाइल पर अंगूठे दौड़ाने की प्राथमिकता से इतर अपनी कानी उंगली पर स्याही निशान लगवाने की चिंता को प्राथमिकता देंगे, और जिस दिन इस देश के राजनेता सड़क से संसद तक का सफर तय कर लेंगे, उस दिन यह संकल्प की सिद्धि परिणति हो जाएगी.
इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले 2047 के जब हम स्वर्णामृत काल में प्रवेश कर रहे होंगे, तब हमारा भारत संपूर्ण विकसित होने के लक्ष्य को प्राप्त कर अपने लिए नए कीर्तिमान गढ़ रहा होगा। इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जयतु भारतम, जयतु बिहार। इस ऐतिहासिक सदन में उपस्थित सभी विद्वानजनों का, सुमंत कुमार का नमस्कार। मान्यवर, आज मुझे ये बताते हुए बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि हम अपने अधिकारों, कर्तव्यों और संविधान के प्रगति की बात वहां कर रहे हैं जहां से इस राज्य का निर्माण होता है। महोदय, जब संविधान की प्रगति की बात आती है तो मेरे मन में बस एक बात आती है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। यहाँ उपस्थित हम युवा तरुणाई का यहाँ होना ही यह चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे देश का संविधान कितना समृद्ध और कितना सशक्त है। माननीय महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि इस पूरे भारतवर्ष को एकता के एक सूत्र में पिरोया जाए, और उसको सफल बनाने के लिए उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड एंड ऐसे बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। महोदय, ये तो बात सामाजिक समरसता की है, लेकिन जब बात आती है कर्तव्यों की तो मैं फिर से पुनः यह कहना चाहूंगा कि मुझे यह कहते हुए गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि मैं एनएसएस का एक स्वयं सेवक हूं, और एनएसएस ने अपने स्वयं सेवकों को यह शिक्षा दिया है कि हमें समाज के कर्तव्य को कैसे निर्वहन करना है। माननीय महोदय, हम इस सभा से यह अपने उस असामाजिक तत्वों को यह कहना चाहते हैं कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। चंद्रगुप्त बन हम प्रलय मचाएंगे, चंद्रगुप्त बन हम प्रलय मचाएंगे। महाराणा और शिवा की संतति कहलाते हम, महाराणा और शिवा की संतति कहलाते हम। शीश कट जाए पर झुकने ना पाएंगे, और बार बार छेड़िए ना देश स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। और माँ भवानी की सौगंध, माँ भवानी की सौगंध, माँ भवानी की सौगंध खा के कहते हैं कि जिस दिन ललकार हुई आपके घरों में चिलकौए मंडराएंगे, चिलकौए मंडराएंगे। इन्हीं सब वक्तव्य के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, चलता हूँ।